Okay, so last round we have completed. Okay, and what inheritance as a theory part. Okay, so today we'll start. Today we'll start the example of the inheritance. Okay, we already see the example of different information hiding, right? Now today we'll see the inheritance. So are you getting my screen, guys? Yes, Yes, sir. please. Okay, okay. So now, this is the Eclipse for the program execution. Okay, let me start how to create a project, right? Then for this we require, okay, some different softwares and plugins over there. Okay, for this we require, okay, Eclipse. Okay, then we require a CDT plugin, that is a C++ development tool. Then we require Mean GW compiler, that is a C++ compiler. Okay, by default Eclipse is supported for Java, but here we need to add a CDT plugin, okay, and MinGW compiler. Okay, so I have done all these things. Okay, now I will show you how to create a project. Okay, and I will show you how to print a hello message. Then we'll start the inheritance program. Okay, today we'll see the exact what is a class, okay, and how to declare a class, how to access the class. Okay, and there is a different way to access the functions inside the class. Okay, so let always start with the file, new. Here if you don't find any C++ project, you can search inside other option. Okay, so you can find out C++, okay, project, click on next. Now see, here you can get a sample project. Okay, just click on empty project. Okay, here you have to select MinGW GCC compiler and then give the name. So I will give inherit demo. This is the name of the project, right? And inside that we have to create the different files. So I'm directly clicking on the finish. It will create a structure. Okay, now see what is the structure over there. Okay, just include files are there. Just you know already all these things, right? How, what is the inclusion, what are the different files are there. See the mean GW32 compiler is there. Okay, now I want to add a source file into that. Now just right click on the project, new file, and just go with the source file. Source means what? A C++ or C file. Now just click on that one and give the name of inherit. We can say single inherit.cpp. Okay, extension you must have to give. Okay, what is the name of the file? Are you getting, guys? Yes, please. Okay. Okay, just click on finish. So after finish, let me show you. Okay, this is the class. Okay, and this class now we have to write some code. Okay, so I am directly starting simple hash include, okay, iostream. If you don't want to write whole code, just type some characters are there and just press Control Shift. Okay, it will show you which inclusion that we have to fetch. So it is we are fetching iostream. Now next, using namespace and standard. ये मैंने already discuss किया था what is the using. These are the namespaces. This std comes under this IO stream because this std is going to give you the C and C out object, right, guys? So now here I am writing integer main. Okay, integer main, and then I will just print integer a comma b. This is for only the example. Okay, and I want to print C out a and C out b. ठीक है, मैं इतना लिखने वाला अभी. जस्ट दिस इज फॉर जस्ट एग्जांपल हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन अ Eclipse. अभी इसमें कुछ एरर है? Yes, guys, there is no single error. Okay, so let's go for execution. So before going to execution, okay, we need to create a binary file. Okay, C++ always create a binary file as a backup. Okay, so if you want to create the binary file for this project, just click on this project.
go to the project and build the project. Okay, when you build the project, it will create the binary file as same name as of your single inherit.cpp. Just click on the build project. Okay, see. Yes, please. नहीं 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 नहीं, दिस इज नहीं नहीं नहीं, ये कैसा है, मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, इसमें दूसरा कुछ यूज नहीं कर सकता मैं, इक्लिप्स है इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है आपको। हाँ नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं, प्रोग्राम के जो जो ये जो कोड लिख रहे हैं हम ना, इसमें एक भी लाइन के कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेम आपको कहाँ लिखना है। जो कोई बीएस कोड यूज करता है, कोई इंटेलिजे यूज करता है, राइट, कोई टर्बोसी कंपाइलर यूज करता है, कोई नोटपैड यूज करता है, नथिंग नथिंग विल बी डिफरेंस। ठीक है, सी the debugging code has been created in a demo.exe in a demo.object file has been created. Okay, now let's go for execution. Right click on this one, run as, and local application. Now it will see the output is going to be shown as empty. So again, one thing is remaining. Right click on project, properties. Okay, here we have to, this is for me, this is not for you. Run build, edit. Okay, environment, I have to add some environment over there. Okay, just 1 minute. Let's check. Got it? This is garbage value. देखो यहाँ वैल्यू हमने किसने दिया है, लेट मी गिव सम वैल्यू। Got it, guys? So this is simple example that how to execute the program. Okay, now I will go with the now a class. Class, what is the syntax for the class? Yes, can somebody tell me? Class, yes, class name, then yes please, data members, then please tell what is the next, member function, data member and the member function. These are the two, only the members inside the class, nothing will be third one. ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? So now I am writing class student, ठीक है? So I want to take the student roll number and address or mobile number we can say. Okay, so what I will do, I will create two variables, student roll number, okay, or we can have student mobile number. Okay, I will create for single class and we'll create one object, and I will try to show you how to access the different variables or different we can say functions inside the class. Okay, now how why I'm going to show you in Eclipse, because in Eclipse and IntelliSense software is actually the name of Eclipse is what, IDE, that is the integrated development environment. Just 1 minute. Integrated development environment means we can have different we can say different programmings that we can club into a single application. Okay, club means what, just we have to run, we can't combine that Java program and C++ program in a one project, that is not possible. Okay, now void get data, ठीक है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ सेमीकोलन डाल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में देन void put डेटा, इसको यहाँ सेमीकोलन डाल देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि दिस इज ओनली द डिक्लेरेशन। ओके, इसका बॉडी मुझे कहा तो लिखना पड़ेगा, अभी कहाँ लिखना है ये भी मैं शो करूंगा। दिस इज द फर्स्ट वे व्हाट वी हैव बीन सीन, द फर्स्ट इज व्हाट वी हैव टू क्रिएट द बॉडी ओवर हियर,
Okay. The first we have to create the body over here. What is the body? It's telling cout, enter, role and mobile number. Okay. Then scene, role and mobile number. Okay. Then what we have to display as it is, roll number, and मोबाइल नंबर इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है. व्हाट इज द रोल नंबर? तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे, रोल नंबर एंड देन थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं दोनों के बीच में, एंड बाद में क्या आएगा अपना मोबाइल नंबर. आर यू गेटिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट द कोड? यस, this is for example. Okay, and this same program I will convert into the inheritance. Okay, I will show you the only single inheritance as of now for the example. Okay, and then we'll have one unit on single inheritance. At that time we'll see different types of inheritance, right? So now my class is ready, but something is missing. Can anybody tell what is missing? Or before going to asking the question, I will create the object of this class. What is your name of the class? Student. I will create S1, and then immediately now I want to access these two functions, right? समझ में आ रहा है ना कुछ? अभी ये रोल नंबर नेम तो मुझे एक्सेस नहीं करना है क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ एक्सेस किया है. ओके, लेट्स ट्राई टू चेक इज ऑल द डेटा मेंबर्स इज एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन और नॉट, इनसाइड द क्लास और नॉट. ठीक है, हाउ वी कैन एक्सेस S1 डॉट. देखो डॉट करने के बाद ये क्या शो कर रहा है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट शो कर रहा है. Okay, but I don't want to access the name of the class. What I want to access? I want to access these two variables or these all four members. So what I have to do? Yes, can anyone tell me if I want to access the members of the class outside the class, or that is into the main? So what I need to do some changes that it will make accessible outside the class. It's a public. Yes. So what we need to do here, पब्लिक एंड कोलन. तो इससे क्या होगा, कौन बताएगा? इसके नीचे जो भी आपने कोड लिखा है ना, वो पूरा कोड क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा. हाँ, अगर बीच में आपने किधर प्राइवेट लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा? जहां तक प्राइवेट है मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा पब्लिक हो जाएगा. उसके आगे का जितने भी लाइन ऑफ कोड है वो क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा. अभी मुझे प्राइवेट का नहीं चाहिए क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए. नाउ जैसे भी देखो S1 डॉट करता हूं, डॉट करने के बाद देखो जितने भी एक्सेसिबल मेंबर्स हैं वो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं. कितने एक्सेसिबल मेंबर्स हैं? यस, हाउ मेनी? अभी यहाँ टोटल 5 दिखाई दे रहे हैं आपको. जो लास्ट वन वाला दिख रहा है ना, ये स्टूडेंट, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर. ये कंस्ट्रक्टर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज अ मोबाइल नंबर. यस, इट इज एक्सेसिबल और नॉट? नाउ देखो जितने भी शो कर रहे हैं ना, इसका मीनिंग ये एक्सेसिबल है. देखो इसको मैं यहाँ वैल्यू असाइन कर सकता हूँ. देन S1 डॉट मोबाइल नंबर, इसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ. देन व्हाट वी हैव टू ऐड, S1 डॉट गेट डेटा एंड S1 डॉट पुट डेटा. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस वन? द आउटपुट इज डिपेंड अपॉन इनपुट. जैसे देखो यहाँ आएगा मोबाइल नंबर इनिशियलाइज होगा 10 से, सॉरी यहाँ क्या होगा अपना रोल नंबर होगा. ठीक है, रोल नंबर इनिशियलाइज होगा 10 से, मोबाइल नंबर इनिशियलाइज होगा 1 2 3 4 5 6 से. एंड जैसे ही हम ये S1 डॉट गेट डेटा कर रहे हैं, ये जाएगा कहाँ? इस क्लास के अंदर जाएगा और चेक करेगा गेट डेटा अवेलेबल है. यस, इट विल कॉल द गेट डेटा फंक्शन. सो इट विल आस्क फॉर एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड मोबाइल नंबर. ओके, देन इट विल आस्क the username and mobile number. We are getting that mobile number, and immediately after this call it will printing the put data. Okay, so can you tell me this will be printed or this will be printed? ये डिक्लेयर किया हुआ प्रिंट होगा क्या? No sir. No, because we haven't used this one. हमने इसको किधर
डिस्प्ले नहीं किया है, ये ध्यान में रखो। ओके, लेट्स execute this code. Now see, okay, what happened? What is an error over here? Sorry, one operator is missing. Okay, let's me compile. ऐसे एरर वगैरह कभी आते हैं तो उसको बिल्ड करके देखो, अगर सभी सिंटैक्स सही है तो। ठीक है, हो गया बिल्ड। नाउ लेट्स गो टू द execution. Now see, it's asking for roll number and mobile number. So I will take roll number 25 and mobile number 789456. I will enter. What is displaying? Mobile number is, roll number is 25 and mobile number is what? Like this one. Okay. Now always keep in mind that while you are writing the code, your data should be always, okay, in a private mode. Why? Because nobody should be change the data. अब ये देखो, यहाँ डेटा चेंज हो रहा है ना अपना, समझ में आ रहा है ना कुछ? तो ये डेटा चेंज ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। ओके, दैट इज द रिकमेंडेशन। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको अभी तो ये एरर आएगा, ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ देखो ये एरर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने के बाद देखो आ गया एरर। क्या बोल रहा है एरर? यस, स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है इज अ प्राइवेट विद इन द कंस्ट्रक्ट। अभी देखो यहाँ एक सिंटेक्स दे रहे हो, व्हाट इज सिंटेक्स? इंटीजर स्टूडेंट कोलन कोलन, दैट इज अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड रोल। This scope resolution operator is telling the scope of that variable. Scope means what? What is the limitation of that variable? What is the limitation of that variable? Yes, please. Yes, guys. Roll number and mobile number that we have declared inside the class, right? So what is the limitation of that variable? How limitation means what? कहाँ तक वो क्लास क्या हो सकता है आपका एग्जीक्यूट हो सकता है? यस, कौन बताएगा मुझे? इसका लिमिटेशन कहाँ तक है? ये रोल नंबर और मोबाइल का लिमिटेशन कहाँ तक है? सिर्फ इस क्लास के अंदर ही है, इस क्लास के बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखो। दैट इज अ स्कोप। आर यू गेटिंग और नॉट गाइस? यस प्लीज। Yes, sir. Okay, now let's again build the project. Now everything, the all errors has been gone. ठीक है, now I want to show you another example. जैसे हमने अभी एक सिंटेक्स देखा, इंटीजर स्टूडेंट, ठीक है, कोलन कोलन रोल नंबर, ठीक है ना? ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इस रोल नंबर को असाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द रोल नंबर इज नाउ व्हाट? इज प्राइवेट मेंबर, सो इसको हमको पब्लिक तो बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू बी एक्सेसिबल। बट नाउ आई डोंट वांट टू यूज अ वेरिएबल, आई वांट टू यूज अ फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, void, void means what? नथिंग विल बी रिटर्न। अब ये फंक्शन के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसका जो स्कोप ऑपरेटर में यूज करने वाला हूं। ओके, यहां मैं लिखता हूं यूज ऑफ स्कोप ऑपरेटर। स्कोप ऑपरेटर क्या है? डबल कोलन। ठीक है, सो void नेम ऑफ द क्लास, इस क्लास देखो ऑटोमेटिक आ गया डबल कोट ऑपरेटर। ठीक है ना? इसके अंदर कौन सा फंक्शन है? गेट डेटा, और इसका बॉडी हम क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। ये जो बॉडी हमने यहाँ लिखा है ना, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अभी ये भी चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन। ठीक है, सेम लाइक void स्टूडेंट, ठीक है, put data, and then what we have to copy paste over here, just copy this one, cut it and paste it. Okay, and just remove these two lines. ठीक है, सेमीकोलन। देखो इसमें कुछ एरर आ रहा है? अभी कुछ भी एरर नहीं है, जस्ट गो फॉर एग्जीक्यूशन। देखो इज आस्किंग फॉर रोल नंबर 10 एंड मोबाइल नंबर 2525 and got it guys? Means how to execute different ways of programs. Yes, are you understood or not? Yes, sir.
Yes, sir. ओके यहाँ हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है और उसको डिफाइन कहा किया है लाइक दिस। तो इसका मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम ही है, जस्ट वी आर यूजिंग अ स्कोप ऑपरेटर। व्हाट हैपेंस, दिस विल टेक सब मच मोर टाइम। थोड़ा क्या होगा, इसमें ज्यादा टाइम होगा। कैसे ज्यादा टाइम होगा, आई विल टेल यू। अभी यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि हमारा मेंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। s1 डॉट गेट किया, जैसे s1 डॉट गेट किया वो कहाँ चेक करेगा, यस इट विल डायरेक्टली जंप टू वेयर, तो दिस फंक्शन, ठीक है ना। अभी इस फंक्शन को यहाँ बॉडी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो नाउ इट इज गोइंग टू चेक द स्कोप। अगर यहाँ बॉडी नहीं मिल रहा है, बॉडी किधर तो प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज नथिंग विल बी कॉल्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका डेफिनेशन चेक करेगा। डेफिनेशन कहाँ चेक करेगा, इसी क्लास के स्कोप में। सो वेयर इज द क्लास स्कोप, सो हियर इट इज, okay. So call this function and execute this code. Again come back to over here, it will execute it successfully. Then again it will call the put data function. Again jump over here, line number 15. Now 15 number line will check where is the scope of this put data function. Yes, it is available on line number 23. It will go inside this function, okay. It will execute all these things and again come back to this one. अब ये जब ये वापस आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, कुछ नहीं लेके आ रहा है, ये एम्प्टी आ रहा है, ओके। तो यहाँ कुछ रिटर्न भी करने वाला ही नहीं है। एंड फाइनली दिस रिटर्न इज फॉर द इंटीजर। पिक्चर क्लियर हो गया गाइस, व्हाट इज हाउ टू राइट अ क्लास, व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज द मेंबर्स ऑफ द क्लास। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, these are the what data members and what we can say, yes these are the member functions. मेंबर फंक्शन क्यों बोला इसको, क्योंकि दीज आर द मेंबर ऑफ द क्लास। समझ में आ गया। इसको मेथड भी बोल सकते हैं, बट मेथड इज इंडिपेंडेंट, ओके। दीज आर द डिपेंडेंट, वी कैन से डिपेंडेंट ऑन व्हाट, फॉर द ऑन द स्टूडेंट। आर यू गेटिंग पिक्चर क्लियर गाइज, इसमें कुछ डाउट है, नो ना। सो आई विल टेक वन एग्जांपल ऑफ द इनहेरिटेंस and after that we'll start what the next example is what, a polymorphism, okay. See, all these things are dependent on each other, this data encapsulation, data hiding, abstraction, inheritance and the polymorphism also, okay. Let's take one example of the inheritance. Now I am trying to say that this is my base class, or we can say super class, or we can say what, पेरेंट क्लास। गेटिंग गाइस, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट है ये मेरा क्या है, सुपर क्लास है, ये है मेरा पेरेंट क्लास, और यही क्या है, मेरा बेस क्लास भी है। नाउ आई वांट टू क्रिएट अनदर क्लास, मैं यहां लिखता हूं एकेडमिक क्लास। एकेडमिक मीन्स व्हाट, विच कंटेन एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सो आई विल राइट ओवर हियर इंटीजर m1 मीन्स मार्क 1, m2 मीन्स मार्क 2, ठीक है। अभी मैं यहां क्या करूंगा, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट यस पब्लिक कोलन गेट m1 गेट मार्क्स से लिखेंगे, ठीक है। what is the remaining over here, void what is the get marks, I will copy this code and paste into it. So enter m1 and m2 marks, ठीक है गाइस। क्या लिखता हूं मैं, m1 एंड यहाँ लिखूंगा m2। जैसे पुट गेट मार्क्स के वैसे क्या करना है आपको, यस पुट मार्क्स, ठीक है। ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, वेरी सिंपल है, अदरवाइज विल राइट कोड, ओके। m1 जो भी है m1, उसके बाद में थोड़ा स्पेस देता हूँ /t, m2 कोलन, यहाँ क्या आएगा m2, ठीक है गाइस। नाउ अभी मैंने एकेडमिक क्लास लिखा, दिस इज क्लास कॉल्ड व्हाट, derived class or child class,
ठीक है, ये किसका चाइल्ड क्लास है? इस एकेडमिक, सॉरी किसका चाइल्ड क्लास है? इस स्टूडेंट का चाइल्ड क्लास है। अभी तक हमने ऐसा कोई कोड नहीं लिखा है कि इन एकेडमिक का और स्टूडेंट का कुछ रिलेशन बन जाए। ऐसा कुछ कोड लिखा है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी, इज देयर एनी सच ए कोड? नो, हमने अभी तक कोई रिलेशन नहीं बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, इस एकेडमिक को भी क्या करूंगा, यहाँ प्रिंट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, एकेडमिक एससी लिखता हूं उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, एससी डॉट गेट मार्क्स आ गया। ठीक है, एससी डॉट पुट मार्क्स। ठीक है, जब भी मैं ये रन करूंगा तो वो दो बार मुझे अभी पूछेगा, पहले बार पूछेगा गेट डेटा एंड दूसरी बार पूछेगा गेट मार्क्स। ओके, लेट्स build this project and then execute this one. Now let's, he's asking for roll number 10 and mobile number is 252525 and then immediately he's asking for what? मैं इसको यहाँ थोड़ा सा स्लैश दे देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। roll number 10, mobile number 2525, then what is he asking? Part 1 95 and 92. सी, ठीक है, M1 कितना हो गया 95 और M2 कितना हो गया 90। पिक्चर क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अभी इतने क्लास हमने लिखे हैं और हर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट इज अ नॉट गुड प्रैक्टिस। ओके, सो आई डोंट वांट टू यूज दिस स्टूडेंट बट आई वांट टू एक्सेस द डेटा ऑफ द स्टूडेंट नाउ। व्हाट आई वांट टू डू? यस गाइस, I don't want to create the object of student because while you are creating the object, it will take a memory, and if have a multiple classes, suppose you are having an 100 classes, so no need to create the 100 classes object over there. Okay, you can have only one class object and we can call number of classes into that one class. So how it is possible? Let's check. तो अभी ये स्टूडेंट का जो डेटा है, अभी स्टूडेंट का जो डेटा है ये क्या करना है, मुझे इस एकेडमिक में क्या करना है, उसको कॉल करना है। तो कैसे कॉल करना है? ओके, जस्ट सिंपली आई वांट टू क्रिएट अ inheritance. Okay, so how it is going to be created? After the class base class as a derived class, just you have to keep one colon over there and write public, what is the name? Student. तो अभी क्या होगा पता है आपको, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स है ये सभी मेंबर्स क्या हो जाएंगे, इस क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएंगे। सभी मतलब जो पब्लिक है उतने ही, बाकी के उनसे भी मेंबर एक्सेस नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने यहाँ उसको प्रोटेक्टेड लिखा है तो वो एक्सेस होगा। अभी यहाँ प्राइवेट है, तो कैन एनीबॉडी टेल मी दिस रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर विल बी एक्सेसिबल इनसाइड दिस एकेडमिक? यस गाइस? No, sir. No sir. Okay, it's right, but can I access this get data and put data inside the academic? Yes, sir. Yes, definitely, because now we are given the rights to whom? To the academic. मतलब ये देखो, ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, आपका जितना भी स्टूडेंट का पब्लिक डेटा है वो किसको एक्सेस होगा? एकेडमिक को। अभी बोलोगे सर हमने यहाँ प्राइवेट लिखा तो प्राइवेट डेटा एक्सेस होगा क्या? नहीं, यहाँ प्राइवेट लिख सकते हैं पर कभी लिखना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल नहीं है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, सपोज आई एम हैविंग मल्टीपल क्लासेस, तो क्या करना है आपको, कॉमा करो, दूसरा क्लास का नाम लिखो। ठीक है, सपोज दूसरे क्लास का नाम है एबीसी, तो एबीसी यहाँ लिखो। ऐसे कितने भी क्लास हम क्या कर सकते हैं, कॉमा करके यूज कर सकते हैं, जो कि हमको अनदर जो मल्टी लेवल और मल्टीपल है उसमें हमको ये चेक करना है। समझ में आ गया गाइस? Now your AC is having how many functions now? Your academic having how many functions? Yes, अभी एकेडमिक में कितने फंक्शन है, कौन बताएगा? ये इसके खुद के दो है ही, अभी वो किसके एक्सेस कर सकता है? यस प्लीज, स्टूडेंट के भी कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 4 फंक्शन हो गए। अभी देखो, एसी में डॉट करके दिखा था, एसी डॉट गेट, दिख रहा है गेट डेटा, यस और नो? तो यहां में गेट डेटा कर देता हूं, क्योंकि गेट मार्क्स हमने ऑलरेडी किया है। यहां लिखता हूं एसी डॉट, सॉरी यह क्या होगा, पुट डेटा एंड सेमीकोलन। देखो कैसे एक्सेस किया, देखो इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्या स्टूडेंट का भी,
नहीं बनाया है, पर स्टूडेंट को किसके साथ अटैच किया? एकेडमिक के साथ, और ऑब्जेक्ट किसका बनाया? सिर्फ एकेडमिक का। गेटिंग गाइस और नॉट? सो दिस 4 फंक्शन will be member of this class, this academic class. Okay, so let's have execute this one. Check roll number 10, then marks 25 and 25. आगे क्लियर? यस प्लीज। थोड़ा मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ। गेट डेटा में पहले लिखूंगा और पुट डेटा दोनों का बाद में लिखूंगा, ठीक है? लेट्स चेक द एग्जीक्यूशन। रोल नंबर 10, mobile number 25, and then he's asking for marks 1 and marks 2, enter। देखो मिल गया। रोल नंबर 10, मोबाइल नंबर दिस वन, एंड M1 10 and M2 दिस वन। समझ में आ गया गाइस? Yes, please. Now, Yes, sir. I will modify the same code now. What the modification is what? Without calling this, अभी देखो जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार फिर से क्या होगा, उसका टाइम जाएगा। अभी टाइम कैसे जाएगा? जितनी बार कॉल हो रहा है उतनी बार उसको उस लोकेशन पे जंप करना पड़ेगा, ठीक है? सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट वांट टू कॉल दिस फंक्शन get data and put data over here, but still I want to access this get data and put data, okay, inside the academic. So can you assign can you tell me a logic that how I can access a get data and put data inside the academic? इस मेन में मुझे एक्सेस नहीं करना है गेट डेटा पुट डेटा, एकेडमिक में एक्सेस करना है। मतलब गेट मार्क करने से पहले मुझे क्या पूछना चाहिए? वो गेट डेटा पूछना चाहिए, और पुट मार्क्स के पहले क्या पूछना चाहिए? वो यस पुट डेटा पूछना चाहिए वो। तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं बोलूंगा कि आपको इनहेरिटेंस क्लियर समझ में आ गया। यस यस प्लीज। Are you getting? I am what I asked one question. Yes, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपको? यस अभी देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, एसी डॉट गेट और एसी डॉट पुट डेटा लिखा था, ठीक है ना? अभी मुझे मेन फंक्शन में गेट डेटा पुट डेटा नहीं लिखना है, ठीक है ना? मुझे क्या करना है, गेट डेटा पुट डेटा कॉल भी करना है, उसको यहाँ लिखना भी नहीं है, पर उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? इस दो फंक्शन के साथ कर सकते हैं। सिंपल है भाई। क्या करना है आपको? गेट मार्क्स से पहले पुट डेटा कॉल करना है। मतलब यहाँ क्या करोगे आप? गेट डेटा करोगे। गेट डेटा इज अ पब्लिक फंक्शन, सो इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल वेयर इनसाइड द क्लास, नथिंग इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। यहाँ हमने उसको अटैच किया है ना, या इनहेरिट किया है ना, तो ये जो जितना भी पब्लिक क्लास है वो क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे हम? पुट डेटा। क्लियर हो गया? अभी कैसे होगा बताओ? मेन में आएगा। ओके लेट मी चेक इज डिबगर इज अवेलेबल और नॉट फॉर दिस वन। देखो यहाँ मैंने डिबग पॉइंट डाला है, इसको मैं डिबग करने का चेक लेके हूँ। अगर डिबगर इज एनेबल देन नो, डिबगर इज नॉट एनेबल ओवर हियर, ठीक है? कैसे होगा एग्जीक्यूशन में आपको बताता हूँ। नाउ योर एकेडमिक ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, ओके? दिस फंक्शन इज कॉलिंग get marks. Where is the get marks available? See, the get marks is available over here. It will comes inside this one, and what will be calling over here? Yes guys, a get data. Okay, so then it will goes to the get data function. Where the get data function is available? Here it is. So it will execute all the code. इसके अंदर और कोई दूसरा फंक्शन कॉल किया है क्या? नहीं किया है। तो क्या होगा, यहाँ का जो भी डेटा है वो सब डिस्प्ले होगा, एग्जीक्यूट होगा, एंड देन इट विल कम बैक टू वेयर फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड। तो ये कहा फिर से वापस जाएगा जहां से इस फंक्शन को आपने लिखा है। ये देखो यहाँ हमने फंक्शन को लिखा है, ठीक है ना? तो ये फंक्शन लिखा, इसके बाद क्या होगा, आपका जो भी डेटा है वो फिर से किसके लिए आस्क करेगा? वो
मार्क के लिए करेगा. अभी मार्क्स कहाँ कॉल हुआ? यहाँ. इट विल कम बैक ओवर हियर. गेटिंग गाइस? देन इट विल अगेन कॉल पुट मार्क्स. पुट मार्क्स यहाँ आएगा. उसके बाद वो क्या करेगा? फर्स्ट लाइन इज व्हाट? इट इज कॉलिंग द पुट डेटा फंक्शन. Okay, it will come over here. It will display these lines, execute these lines, and again go back to where, from where it is going to be called. Getting or not? And finally, this put mark setting will be executed. Yes, guys, are you getting or not? Understood, all of you? Now let's have a execution. देखो, पहले रोल नंबर पूछेगा. अभी क्या पूछेगा? कौन बताएगा मुझे? जैसे मैं एंटर करूंगा, what the message will become? Yes. अब ये बराबर है कि नहीं? ये देखो, यहाँ उसने गेट मार्क्स कॉल किया, उसके अंदर उसको गेट डेटा कर रहा है. अभी गेट डेटा होने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो मार्क्स के लिए पूछना चाहिए. यस, मार्क्स में यहाँ एंटर करूंगा, और जैसे एंटर करूंगा तो क्या होगा? पहले रोल नंबर प्रिंट होगा एंड देन मार्क्स प्रिंट. ठीक है, थोड़ा उसको उल्टा लिख देता हूं मैं. अगर मैंने इसको यहाँ से कट करके नीचे डाल दिया तो मुझे बताओ क्या आउटपुट मिलेगा मुझे अभी? यस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन? कौन बताएगा? पहले क्या पूछेगा? वो रोल नंबर पूछेगा या मार्क्स पूछेगा? फर्स्ट मार्क्स पूछेगा. यस सर. पहले वो क्या करेगा? अभी देखो, सिंपल, एकदम सिंपल है. जैसे इस फंक्शन के अंदर गया, उसको पहले क्या मिलने वाला है? ये दो लाइंस. तो ये दो लाइन पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में ये फंक्शन कॉल करेगा. ठीक है ना? उसके बाद में गेट पुट कॉल किया तो पहले ये मिलने वाला है, तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा एंड देन इट विल गोस फॉर द दिस एग्जीक्यूशन. ठीक है, मैं आपको दिखा दूं. चेक करो. देखो, व्हाट इज आस्किंग? यस, M1 M2. When I enter, it will ask for the roll number and mobile. So roll number is 25, mobile number is 252525. आ गया मोबाइल नंबर फर्स्ट एंड रोल नंबर सेकंड. अंडरस्टूड गाइस? Yes. Yes, sir. It is very easy. So this is the simple example of the single inheritance. We can say not single inheritance. It is an example of inheritance. सिंगल, मल्टीपल, मल्टीपल और मल्टी लेवल और हाइब्रिड हम बाद में देखेंगे, जैसे आपका वो सिलेबस आता है, मतलब कंसेप्ट आता है. समझ में आ गया? पूरा पिक्चर क्लियर हो गया आपका? Yes, sir. Okay, good. Now I will go for what? The next concept is what? Polymorphism. Okay, where is that syllabus? Polymorphism. Okay, now I will tell you what is a polymorphism. Okay, I will first polymorphism is an actually a process. Is a one process. Okay, now the process is divided into different words. Poly means what? Yes, yes, guys, more than one. बराबर है कि नहीं? Poly means what? More than one. And morphism, actually polymorphism is comes from poly आणि morph. ठीक है? ये morphism is a process. It is a whole process. Okay, but morph is what? Morphing is a Greek word. ये morph क्या है भाई? Yes, it's a Greek word. Okay, and phism matlab is what? It's a process of the this Greek word. So what is this morphing? Morphing means creating the multiple copies, okay, more than one copies of the function of the same name. Okay, so this is called the polymorphism. Polymorphism is a process of creating, okay, multiple functions with same name but with different types of
parameter. ठीक है, what is the meaning of polymorphism? Yes guys, it's a process of creating multiple functions लिखता हूं यहाँ, multiple function with the same name. How it is possible? Okay, multiple function with the same name but with the different types of parameters. Let me show you one example. Suppose this is my function add. ठीक है, ये फंक्शन ऐड लिखा मैंने, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं लिखा है. ठीक है, दूसरा फंक्शन भी ऐड लिखूंगा तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? यस, दिस इज द सेम लाइक इफ योर क्लास कंटेन टू नेम एज सुरेश. अगर आपके क्लास में दो सुरेश है और मैंने किसी एक को कॉल किया तो कैसे समझ में आएगा कि मैंने कौन से सुरेश को कॉल किया है? It's create an ambiguity, it's create an confusion in between student also and staff also. Are you getting or not, guys? So how can I call that specific student? So I can have a name, okay, I can have his surname, okay. If coincidentally we can say his surname is also same, then we can have his roll number also. Yes, so we can have its, we can say identity. Using that identity we can call a specific student. So here the identity is not a name of the function, the identity is that what we are passing as a parameter. Are you getting guys? ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, ये समझ में आ गया नहीं ये इनहेरिटेंस वाला कोड? यस सर. ओके, तो मैं इसी के अंदर क्या कर देता हूँ, दूसरा कोड आपको डाल के देता हूँ. व्हाट इज द नेम? source file, then polydemo.cp. ठीक है, यहां लिखता हूं मैं. जाते जाते मैं आपको एसटीडी बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान में रखो. क्लास में लिखता हूं स्टूडेंट. ठीक है, यहां आएगा मेरा मेन आएगा. ठीक है, यह आएगा 0. ठीक है, अभी मुझे इसके अंदर क्या करना है, गेट डेटा करना है. ठीक है, यहां मैंने गेट डेटा का कोड लिखा, क्या लिखा, सेम अगेन. मैंने सेम कोड लिखा. ठीक है, मैं यहां लिखता हूं रोल नंबर, सॉरी कॉपी करते हैं हम. क्या लिखा? ठीक है, मुझे क्या करना है, और एक गेट डेटा लिखना है, वॉइड गेट डेटा. याद देखो, वो ऐसे लिखते ही क्या कर रहा है, आपको एरर दे रहा है. व्हाट इज एन एरर? इनवैलिड रीडेफिनेशन ऑफ गेट डेटा. मतलब इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, हम इसका डेफिनेशन फिर से नहीं कर सकते हैं. पर पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है, वन फंक्शन कैन हैव मेनी फॉर्म्स. यस गाइस, वन फंक्शन कैन हैव मेनी फॉर्म्स विद द सेम नेम, बट हाउ टू आइडेंटिफाई? यस, अभी ये हमको दिख रहा है बाबा कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, तो कंपाइलर को भी पता ही चलेगा ना कि गलत हो रहा है बोल के. बराबर है कि नहीं? दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ द इक्लिप्स. ये आपको यहाँ ही शो कर रहा है. अगर आप नॉर्मली ये लिख रहे हो, टर्बो सी में लिख रहे हो, तो आपको एरर कब दिखेगा, जब आप उसको रन करोगे. ये यहाँ आपको दिखा रहा है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट इट्स सिग्नेचर और इट इज आइडेंटिफिकेशन. So what is the definition of the polymorphism? It's a process of creating multiple function with the same name. तो यहां तक तो हमने बराबर किया है, बराबर ना. मल्टीपल फंक्शन मतलब गेट डेटा यहां लिखा, गेट डेटा यहां लिखा. ठीक है, देन बट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स. डिफरेंट टाइप्स मतलब अभी यहाँ पैरामीटर नहीं है तो मैं यहाँ पैरामीटर लिख सकता हूँ. देखो जैसे मैं यहाँ पैरामीटर लिखूंगा आपका एरर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा. यस, है ना एरर आपका? आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर. ओके, तो मुझे क्या करना है अभी, ये मैं डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकता हूँ. ये जो वैल्यू है ना आर और एम, ये डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं प्रिंट करने का डायरेक्टली. ओके, ऑलवेज असाइन टू द लोकल वेरिएबल. अभी लोकल वेरिएबल कौन कौन है यहाँ, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर. तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ
रोल इक्वल टू आर, ठीक है, एंड मोबाइल नंबर इक्वल टू एम, ठीक है। इसको हमने इसे असाइन कर दिया। पिक्चर क्लियर हो रहा है ना गाइस? तो मैं क्या करता हूं, इनको डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ एक ही डिस्प्ले फंक्शन लिखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, पुट डेटा लिखता हूं, ठीक है, और यहां से पुट डेटा का कोड क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट मार देता हूं, ठीक है। अभी मुझे बताओ कौन सा गेट डेटा कैसे कॉल करना है, वो कैसे पता चलेगा? सेम, जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट, ठीक है, S1 सेमीकोलन S1 डॉट, जैसे डॉट करोगे वो आपको, अरे अभी ये हमने उसको पब्लिक नहीं किया है इसीलिए वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो कौन सा पैरामीटर कॉल, कौन सा फंक्शन कॉल करना है डिपेंड्स है। अगर मैंने गेट डेटा कॉल किया तो आपको वो इनपुट के लिए पूछेगा, ठीक है, तो मैं ये क्या करता हूँ, S1 डॉट पुट डेटा कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से क्या करूंगा, मुझे और एक फंक्शन क्या कॉल करना है ना, गेट डेटा वाला, पैरामीटर वाला, तो क्या करूंगा, S1 dot get data with value. So what I am trying to say, I am passing 10 comma 25, that is a value and the mobile number, and we are displaying the same. ये पिक्चर क्लियर हो गया, समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म. What it is called? Polymorphism. Now the polymorphism and again divided into two types, okay, function or classification in two types. First one is a function overloading and second one is what, function overriding. Okay, what is the first one? Function overloading and the function overriding. Okay, अभी जो मैंने डेफिनेशन बोली है ना, ये डेफिनेशन किसकी हो गई? ये डेफिनेशन हो गई फंक्शन ओवरलोडिंग, और नॉट, और यही डेफिनेशन में यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम नेम, सेम टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। थोड़ा सा सुनने के लिए आपको अजीब लगेगा पर यही है। व्हाट इज द थिंग्स इन बिटवीन, डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ थिंग्स? द फंक्शन ओवरलोडिंग मींस व्हाट? जैसे पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट आता है, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है? मोर देन वन फॉर्म्स of the same function, okay, but while we are using more than one forms of the same function, it will goes into the two types or two classification. First one is a function overloading and second is a function overriding. Function overloading is says what? The process is creating multiple functions with the same name with the different types of parameters. मैं क्या बोल रहा हूँ? Different types of parameters, not the different parameters, हाँ, और multiple parameters. मैंने ऐसे भी लिखा तो भी नहीं चलेगा, ऐसे भी लिखा तो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको एरर देगा कि सेम टाइप के पैरामीटर है, इसीलिए। क्लियर हो गया गाइस? देन अभी ये जो सेकंड वाला है फंक्शन ओवरराइडिंग, ये क्या बोल रहा है? इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम एंड सेम टाइप ऑफ पैरामीटर। मतलब उसका नाम भी सेम होगा और उसका सिग्नेचर भी सेम होगा। गेटिंग? जस्ट 1 मिनट गाइस, आई एम गेटिंग कॉल।
Okay guys, hello. Okay, let's continue. Okay, ये समझ में आ गया what is a function overloading, ठीक है, and function overriding. Now the next thing is what, this function overloading is possible in same class or one class. वन क्लास मतलब उसी क्लास में, ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे वन क्लास. दिस फंक्शन इज फंक्शन ओवरलोडिंग इज पॉसिबल inside the same class, okay, but function overloading is possible in different class. क्यों possible है different class? क्योंकि अगर function with the same name और same type of parameter होंगे तो फिर से क्या बोलेगा वो, okay, ये confusion होगा compiler को और it will showing that this is a redefinition, invalid redefinition. तो दो अलग अलग क्लास होंगे और सेम फंक्शन दो अलग अलग इसमें कॉल करेंगे. ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, जिसका हम इस टाइप जैसे हम इसका एग्जांपल देखेंगे एट दैट टाइम विल टेल यू. पिक्चर क्लियर हो गया गाइस? यस, ओके. तो आज का जो हमारा ये पॉइंट था ये हमने कवर कर दिया है. ओके, ये पूरा थ्योरी पार्ट तक कवर कर दिया है. एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट व्हाट these points, right? What is a function, what is a function prototype, how to access the function, okay? Then what is a constructor, what is a destructor, types of constructor, how object तो हमने already देखा है. How memory is requirement, okay? Static member होता क्या है, okay? Variable क्या है, function क्या है, inline function क्या है, friend function क्या है, ये हम क्या करेंगे वन बाय वन चेक करेंगे. ठीक है guys? Yes please. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we'll stop over here. The request is what? Kindly pay the first installment. Okay. My number is given on your group. You can pay by Google Pay also or Phone Pay also. Okay. Only Saurabh Tripathi has been paid the first installment. So I'm requesting you to other guys, please pay the fee. Right? Yes, sir. I will pay. Okay. All of you have to pay. Yes, sir. Okay. Bye. Thank you.